Hello students, good morning everyone. Students, today in this video, I am going to summarize chapter 10, Laws and Public Welfare. Okay, so it's the last chapter of your civics portion, and after this video, I'll give you another video that will discuss about its exercises. Okay, so students, let's recall all the topics which we have learned under this chapter. So, laws and the public welfare. Students, the government makes laws to promote the welfare of the people. There are various types of laws which aim of promoting welfare. A number of these laws seeks to achieve their aim by preventing different kinds of exploitation, including exploitation by denying essential facilities. तो आपने देखा होगा हमारी कंट्री में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जस्ट बिकॉज देर इज़ अ एक्सप्लॉइटेशन इन द सोसाइटी and even there is exploitation to use the बेसिक नेसेसिटीज़. अब कहीं कहीं पर देखते हो कि लोगों को उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को यूज़ करने से भी मना किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके फंडामेंटल राइट्स होते हुए भी उनको neglect किया जाता है. Okay, so to promote the welfare, to promote the equality, government has made some fundamental laws, and the government also made some different laws to protect citizens' fundamental rights. Okay, so which types of laws are there? What are their uses? Let us recall. So first one, laws for the different groups. There are different laws for the different groups in the society to protect people from the exploitation. First one, laws for the workers. Workers means those people who work in any factory in the regular wages or the casual workers. So there are several laws for the protection of the interests of the workers. Okay, and I hope you all have listened about the Minimum Wages Act. ये मैंने आपको पढ़ाया भी है. So Minimum Wages Act, it seeks to ensure fair wages for the workers. Means wage क्या होता है? Means the daily payment for the work a workers do. मतलब एक वर्कर जो डेली का काम करता है उसके लिए उसको जो पेमेंट मिलता है, that is the wage. ठीक है. So to seek ensure the fair wages to the workers, the Minimum Wages Act has been introduced. And there are also some laws which require certain safety measures. मतलब अब ऐसा नहीं फेयर वेजेस मिल गई हैं, सिक्योरिटी नहीं है. सिक्योरिटी के लिए भी कई सारे लॉस बनाए गए हैं. लाइक देयर इन द फैक्ट्रीज and in the construction side there are many dangerous activities, and it is danger to work there. So there are laws required. For example, workplaces must have proper lighting, monitoring system. To prevent the accident, the workers must be given the protective cloths. मतलब वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन दैट एरियाज इन दैट डेंजर सिचुएशन प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स भी देने चाहिए. फायरिंग इक्विपमेंट्स मस्ट बी देयर, सुइटेबल अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट्स मस्ट बी देयर. सो दीज ऑल द थिंग्स विच आर कंपल्सरी in any factories to minimize the casualties during the accidents. अगर कोई एक्सीडेंट होता है इफ ऑफन, तो उस कंडीशन में वर्कर्स को कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े एंड इमरजेंसी उनको तुरंत फर्स्ट एड प्रोवाइड कराई जाए इस तरीके की, एंड इंश्योर किया जाए कि कैजुअलिटीज़ हो ही नहीं. एंड देयर आर ऑल्सो सम लॉज, एंड इट इज़ अ फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन एजड बिलो द 14 years. Nobody can employ the child below the 14 years in any dangerous job. इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. अगर कोई बच्चा 14 ईयर से कम का किसी भी शॉप पर फैक्ट्री में वो काम करता हुआ पाया जाता है, देन द ओनर ऑफ दैट पर्सन इज़ ऑफेंडेड फॉर दैट एक्ट. ठीक है, क्योंकि वो एक इलीगल वर्क है. कोई भी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, टी शॉप्स में कोई भी बच्चा 14 ईयर्स से कम का उसको काम पर नहीं रख सकता. इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. ओके, नेक्स्ट इज लॉस फॉर द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स मीन्स इट्स वी, मतलब ये हमारी बात हो रही है, हमारे लिए क्या लॉज बनाएंगे. सो सम लॉज आर रिक्वायर्ड दैट गुड्स स्पेशली फूड, मेडिसिन्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, टॉयज विच आर सोल्ड इन द मार्केट आर सेफ और नॉट. दीज ऑल मस्ट बी सेफ फॉर अस. सो देयर आर सम लॉज आर मेड फॉर द कंज्यूमर्स. जैसे कि आपको पता है, अ कंज्यूमर कैन गो टू द कोर्ट इफ़ द गुड्स एंड सर्विसेज यू बाई बट यू फेल टू मीट द एक्सपेक्टेड क्वालिटी स्टैंडर्ड. अब आपने सोच के तो ख़रीदा था कि बहुत अच्छी होगी, उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, बट वो जो प्रोडक्ट आपको मिला
वो अपना स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कंज्यूमर्स के पास राइट है कि वो कोर्ट जा सकते हैं। और एक RTE नाम का राइट है विच वॉज लॉन्च इन द 2005, राइट RTI, ठीक है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, इट वॉज लॉन्च इन द 2005। ये फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्रोड्यूसर्स से। नेक्स्ट इज लॉस फॉर एवरीवन. So there are some laws to mean to protect the interests of all people in general. So in general there is a Article 21 of the Constitution. It guarantees to access the clean environment. ठीक है, हमारे आसपास की सराउंडिंग है वो क्लीन होनी चाहिए। और जो हमारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं इट इज़ सिक्योर्ड अंडर द आर्टिकल 21, ठीक है। इसमें जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इंश्योर कराई जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर सम लॉज विच हैज़ बीन मेड for the different groups of the society like workers, consumers and everyone. So workers के लिए है minimum wages act, consumers के लिए है RTI and we can go to the court also. And Article 21 which gives us the security and guarantees us for the basic amenities and a clean environment. Implementation, how these laws are implemented. So laws बने हुए हैं but these are ineffective unless these are implemented properly. कोई लॉ बनाया गया वो तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है. सो देर आर वेरियस laws which has been made for us but they have not implemented properly. पूरी तरह से implement नहीं किए गए. Okay, so these laws are like these laws, the law not allowed the children below the 14 years to employ in a domestic servant in any construction or in any dangerous job. ठीक है, मिनिमम एजेस एक्ट भी बनाया गया अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए. पनिशमेंट भी रखी गई है, ठीक है. बट ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं. यू कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू द इंसिडेंट हैपन इन द भोपाल में एक इंसिडेंट हुआ था इन द ईयर 1984 इन December. There was a poisonous gas, methyl isocyanate. It has been leaked, and it was a poisonous gas. So the plant Union Carbide, it was an American company which was set up there. So at midnight, the gas was leaked. The people who have breathed that poisonous gas, they feel vomiting, irritation in their eyes, coughing, and many more problems. And many people stumble and they lie down on the road, and thousands of the people were died. And many more people were permanently disabled. बहुत सारे लोग जो थे permanently disabled हो गए just because of that poisonous gas. And all this happened just because the adequate safety measures were not taken. अब क्या था कि वो फैक्ट्री सेटअप की गई, उससे उस प्लांट से वो गैस लीक हुआ, एक्सीडेंट हुआ इतना बड़ा, बट उसमें मॉडर्न सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं अपनाए गए थे. देयर वर नॉट इनफ वर्कर्स प्रॉपरली नहीं थे. द इंडस्ट्री वॉज सेटअप नियर टू द सेटलमेंट्स के पास में थी. कोई इमरजेंसी कैजुअलिटीज़ नहीं थी, मतलब इमरजेंसी इक्विपमेंट्स नहीं अपनाए गए थे. एंड देयर वर ऑल्सो कॉमन वेज इन द फैक्ट्रीज रिड्यूस कॉस्ट, और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए फैक्ट्री ने बहुत सारे तरीके अपनाए. जस्ट बिकॉज द वैल्यू ऑफ द वर्कर्स वॉज वेरी लो. अब वर्कर्स की वैल्यू इसलिए लो थी जस्ट बिकॉज इफ़ वन वर्कर्स लॉस देन द अनदर इज़ ईजली हायर्ड. कोई एक पर्सन अगर जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा बहुत आसानी से हायर किया जा सकता है. दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ द वर्कर्स इज़ वेरी लो. सो there was very low wages were paid. Employing less than required number of workers was there. Untrained workers, there was safety measures were ignored. There were pollution also. And industrial area was situated near to the settlements. ठीक है, प्रॉपरली लॉस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, इसलिए ये सारी कंडीशंस क्रिएट हुई. ओके, एंड सिमिलरली इसी कंपनी का एक प्लांट USA वर्जीनिया में भी था. वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम वॉज देयर. बट इन इंडिया एवरीथिंग वॉज नॉट अडॉप्टेड. मॉडर्न सेफ्टी इक्विपमेंट्स वॉज नॉट अडॉप्टेड. कोई भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अडॉप्ट नहीं की गई थी. सो आफ्टर दिस डिजास्टर गवर्नमेंट हैज़ sue the $3 billion compensation on the Union Carbide. But finally
the company has accepted only $470 million, and individually this was a very little amount which has been given to the victims. And finally, the Warren Anderson, who was the chairman of Union Carbide in 1984, ही वॉज नॉट पनिस्ड, उनको भी छोड़ दिया गया. तो इस तरीके से कुल मिला के जो विक्टिम्स थे उनके साथ में जस्टिस नहीं हुई. एंड after this incident, after this Bhopal disaster, the company was continued. मतलब वो plant बंद हो गया, but the harmful gases, this has been still uphold है, अभी भी उस कंपनी में रखी हुई हैं. अभी भी उस कंपनी में वो जो मटेरियल था, हार्मफुल केमिकल्स थे, वो अभी भी उस कंपनी में बने हुए हैं. सो इट स्टिल डेंजरस. एंड टू अवॉइड सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, to avoid the pollution, we use the compressed natural gas CNG. आपने देखा होगा कि जो vehicles हैं, the government has forced to the people that the people must use CNG on account of the another gases and the diesel and petrol. ठीक है, उसकी जगह पर एयर पोल्यूशन कम हो, इसके लिए व्हीकल्स में CNG यूज़ किया जाना चाहिए. इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग गैस. सो स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द चैप्टर 10 लॉज इन द पब्लिक फैसिलिटीज़. आई होप आपको इस चैप्टर के बारे में सारी चीज़ें कंफर्म हो गई. लॉज इन द पब्लिक वेलफेयर. एंड स्टिल इज़ देयर एनी डाउट, यू कैन आस्क इट टू मी. ओके, एंड डू द गिवन वर्क.